dede dede dage ne da, dede 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 dage ne da, ta ta dede dage ne da, dede dede dage ne da, dede 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 dage ne da, ta ta ta. एक साधु हमारे घर आते थे, क्या नाम है? मासूम अली खान। बजाओ, जो भी हम सीख रहे थे वो बजाया। तुम आज से अमजद हो। Big music festival happened in Kolkata. Among the great musicians like my father's picture, Bade Ghulam Ali Khan Sahib's picture, Kesar Bhai. In between, my photograph was printed there. Under my photograph, they wrote Ustad Amjad Ali Khan. कपूर साहब इनका मैथमेटिक्स कैसेट होगा। चलो खान साहब ये कभी मैथमेटिक्स में पास नहीं करेंगे और मैं इन्हें कभी फेल नहीं करूँगा क्योंकि ये सरोज बजाने के लिए है। डा 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 I'm so grateful. I had the honor of meeting first president of India, राजेंद्र प्रसाद जी। खान साहब कोई तकलीफ तो नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में अब हमारे पिताजी उनको कह रहे हैं कि राग दरबारी की प्योरिटी को बचाइए। तो इंडिया नर्चर्ड मी, इनकरेज्ड मी, मेड मी अमजद अली खान। Today's guest is one of the reasons I got into podcasting. It's an honor and a privilege to welcome Ustad Amjad Ali Khan, a true embodiment of India's cultural and musical heritage, a Padma Shri and a Padma Vibhushan who started playing the sarod from the age of 7 and has been enthralling audiences worldwide ever since. Ustad ji, thank you so much for giving us time and making your way here. Sir, you have said that the sarod is like a child. You have to nurture it. What was your journey with the sarod like? How did you fall in love with the sarod? I'm very fortunate that I was born in the family of musicians. And the meaning of education in our family was music only. And my father was not keen that I should go to school. And he had a strong belief that I should concentrate on sound only, on music only. Because they are two different world of sound, Swaar ki dunya, and world of letters or words or literature or language. Guru Shish Parampara, what we say, when you are learning this oral tradition. So there is no book, no writing or reading. So that was I had a small sarod and everybody was teaching me, whoever passing through. So I am very fortunate that I was born in the family of musicians. And then I realized the value of music in our family. If the senior people, if they are happy with your music, they will give you some इनाम। Okay. कुछ पैसा देंगे या कुछ पान खिला देंगे या मीठा दे देंगे, तो वो बहुत बड़ा आशीर्वाद होता था। हमारी माता जी, माय मदर, she also expressed her love through Music. sweets or Okay. pan or khana. It's a great opportunity for anybody whose father is a musician. So I'm very fortunate that I was born in Gwalior. Gwalior is the land of Mia Tansen. For today's generation, I think we'll have to introduce Tansen. I think, sir, his music, we obviously, all of us didn't have a chance, but I think his Now that reputation. he was the court musician Correct. of His Emperor Akbar. Akbar. So his He was reputation among the precedes. 9 jewels of Emperor Akbar. जो लोग आपके साथ हैं, the people you were with, were all legends, were all unbelievable in who they were and their performances, and their names are still spoken about today. Did you have that feeling being surrounded by these people? I shifted from Gwalior in the year 1958.
But during the time I was in Gwalior, Marshal Tito came Mhm. and I was presented. I played whatever I was playing. Ho Chi Minh, Yeah. he visited Gwalior. Dr. Rajendra Prasad visited Gwalior, the first president of India. So, Rajmata Sahiba of Gwalior, Vijay Raja Scindia ji, she used to love me like a son. On every occasion, special occasion, she will just uh, request me to perform. But after coming to uh, Delhi, then there was an institution called Bharatiya Kala Kendra, where great musicians from different part of India, they were invited to uh, teach music Okay. there. And that became a very important institution, Bharatiya Kala Kendra. So by the time you reached Bharatiya Kala Kendra, I think you were already one of the famous or big sarod players. I was not a child prodigy. But I had a lot of determination and I was struggling. And from a very young age, I realized the responsibility of the family. Okay. And I'm, I'm grateful to my countrymen, every region of India. They started inviting me to perform. And one big music festival happened in Kolkata. Pandit Kalidas Sanyal, the secretary of the music festival, it was very prestigious festival called Sadarang Music Festival, where my father was invited and Kalidas Babu invited me also. And in the brochure, beautiful brochure, I still have of 1958, among the great musicians like my father's picture, Bade Ghulam Ali Khan Sahib's picture, Kesar Bhai, in between my photograph was printed there. And they were so kind and encouraging that under my photograph they wrote Ustad Amjad Ali Khan. In Bengal, in those days, they used to write Ustad with O. Oh, Ostad, and in my name they always use Z instead of okay. J. Ostad Amjad Ali Khan. Possible to learn something like the sarod in a traditional way, or it has to be learned in the Guru Shishya Parampara, Rushank. Rushank. पहले एक विद्वान आदमी को इंस्टीट्यूशन समझा जाता था. A knowledgeable man was The considered institution. an institution. But today, a cemented building is called institution. So that is the difference. The whole approach is so different that you pay institution's fee and the teacher, he gets his fee to teach. But Guru Shish Parampara, I still remember at the time of partition, Muslims, they used to take shelter in Bhopal or Hyderabad. But that disciple, Dev Narayan Jha, he told my father, Khan Sahab, आपको कहीं नहीं जाना है, आप यहीं रहेंगे. So my father stayed in that house in Gwalior, and all the processions were going through that. We have a house Yeah. on the main road, and people had so much reverence and love for my father. They were all doing namaskar. वो खिड़की में बैठे रहते थे. कोई अंदर नहीं आया हमारे घर के अंदर. So it is very difficult to understand India. So India nurtured me, encouraged me, made me Amjad Ali Khan. You play all over the world, you play all over the country. Yes, There must be differences in how people listen, yes. in what they like listening to. Do you think, as a musician, for me as an audience, I must come and appreciate what you want to play, or do you change the music for the audience? Is it something which is a partnership, or is it more the audience should only come and listen and the musician will then play? You see, Bengal
had a tradition. I still remember there was a time in one year, Bengal used to have at least 25 music festivals. You see, the most popular musicians, they will stay for 2 months, 3 months in Bengal in those days. And Maharashtra also, you know, Pune, Mumbai Yeah. was always I mean, people call it a commercial capital, but I think it's a cultural Capital. capital also. And Pune is amazing audience in Pune. Nagpur, I have memorable concerts in Nagpur. And all over Maharashtra. But Maharashtra, uh, they have they had many singers and they produce many singers also. Bengal had many instrumentalists, Okay. lot of sarod players, sitar players, tabla players. But according to the capacity of the audience, we tailor our. So you do change the. Yes, we do. You see, I always pray to God that I should never be the cause of humiliation of music. Okay. ऐसा ना हो मैं बजाता जा रहा हूँ लोग घड़ी देख रहे हैं भाई खत्म कब करेंगे ये? ऐसा नहीं होना चाहिए. म्यूजिक शुड बी अपीलिंग. हम उर्दू में कहते हैं पुर असर पुर तासीर पुर कशिश. तो अपीलिंग म्यूजिक वो फिल्म का हो या फोक म्यूजिक हो, एनी म्यूजिक जो अपीलिंग है वही क्लासिकल है. सर बट ये जो पॉइंट है आपने बोला कि जो अपीलिंग है वही क्लासिकल है. काफी म्यूजिक अपीलिंग जो है वो इट मे बी फ्रॉम अ मूवी, it may be from it may be Yes. from a video game, it may be from other mediums. Yes. And sir, jab aap when you were growing up, when you were starting off, even now I would say there is a very distinct divide between what people would consider classical music and popular music. Do you feel that? Do you sometimes feel like we can also play these kind of songs, or do you feel those are easy to play, the more appealing songs, the more songs that people play in movies or weddings? No, you see, every instrumentalist cannot play a film song Mm-hmm. because a music director वो कोई हो वो उसमें टाइम लगाता है उसको खूबसूरत बनाने के लिए. अब मदन मोहन थे म्यूजिक डायरेक्टर. हाँ. उनका एक कंपोजिशन, अब वो हमारे लिए राग आनंदी है. वो डा 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 रा डा रा डा डा रा डा रा डा 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 तू जहाँ जहाँ भी होगा. वो गाना हमारे लिए वो एक राग है और उन्होंने बहुत खूबसूरत इसको एक कंपोजिशन बनाई. ऐसी हर म्यूजिक डायरेक्टर ने 10 गानों में से एक तो बहुत अच्छा होता ही है. लेकिन हर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट फिल्मी गाना नहीं बजा सकता जी. है. उसके लिए थोड़ी अकल चाहिए, समझ चाहिए, क्योंकि हाउ टू, एंड दैट वाज माय स्ट्रगल ऑफ लाइफ. आपने बोला that you told me you are not a child prodigy. What is the kind of practice, what is the kind of effort that it takes, your kids must have also put in, you have put in, now your grandchildren will have to put in to be an ustad, to reach that level? You see, आपने मेरी बायोग्राफी में देखा होगा कि I was 6 years old Correct. when I was pushed onto the stage. There's a picture, I'm wearing a topi, and that was part of training, part of education. और I never used to believe कि मैं शायद 6 साल का था और मैंने बजाया. Then one day I was receiving Tansen Award in Gwalior. So after a concert I was coming to my car and I nearly sat. Then a group of senior citizens were coming towards me. तो मैं गाड़ी से उतर गया, बहुत आशीर्वाद दिया. कहते हैं हम लोग आपका वो 6 साल वाला प्रोग्राम भी सुनने आए थे जब आपका पहला था प्रोग्राम. देन आई रियली बिलीव्ड कि वो ऐसा हुआ था. एक कहानी आपने ग्वालियर की है.
एक साधु हमारे घर आते थे, सैफरन क्लोथ, दाढ़ी, बहुत ही नूरानी शक्ल थी उनकी, और वो खुद भी गाते थे हारमोनियम लेके, मदीना ना देखा तो कुछ भी ना देखा, अब्बा का सरोद सुनते थे। तो मेरी तरफ देखा, उस वक़्त तक मेरा नाम मासूम अली खान था, जी। बचपन से वही नाम रखा गया था, कुरान शरीफ से निकालते। तो मुझे देखा, भाई क्या नाम है? मुझे मासूम अली खान। बजाओ, जो भी हम सीख रहे थे वो बजाया। तुम आज से अमजद हो। तो उनका आशीर्वाद है ये। उस साधु फिर हमने देखा नहीं कभी उनको, लेकिन अब्बा कहते थे, वो आते थे हमारे घर में, आशीर्वाद देते थे। तो ग्वालियर से जब 1958 में दिल्ली आए, तो दिल्ली में एक स्कूल है, मॉडर्न स्कूल, जी। तो वहाँ मेरा एडमिशन हुआ। तो मेरा मैथमेटिक्स बहुत कमज़ोर था स्कूल में, ऑन द पेपर। अब हमारे म्यूज़िक में भी मैथमेटिक्स है। हाँ जी। जो भी जैसे धेटे धागे ने धेटे धेटे धागे ने धेटे 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 धागे ने धेटे धागे ने धागे तीन आगे ने धेटे धागे ने धेटे 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 धागे ने धेटे धागे ने धागे तीन आगे ने, ये सारा मैथमेटिक्स। सो वी क्रिएट कास्टल्स इन द एयर। आप ना स्वर देख सकते हैं, ना लय देख सकते हैं, ना भगवान को देख सकते हैं, लेकिन कागज पे हम मैथमेटिक्स में कभी अच्छा काम करे ही नहीं। तो एक दिन हमारे पिताजी स्कूल आए, और हमारे प्रिंसिपल मिस्टर एम एन कपूर, ही वॉज इंस्टीट्यूशन, वेरी काइंड, वेरी इनकरेज। कपूर साहब, इनका मैथमेटिक्स कैसे ठीक होगा? कह रहे, खान साहब ये कभी मैथमेटिक्स में पास नहीं करेंगे, और मैं इन्हें कभी फेल नहीं करूँगा, क्योंकि ये सरोज बजाने के लिए आए हैं। कैन यू इमेजिन एनी प्रिंसिपल ऑफ एनी कंट्री टू से दीज वर्ड्स? बट दोज 4-5 years of schooling, because of that I can face the world today. Mhm. I was doing residency in Stanford University, Washington University, Indiana University, many universities, and I was not teaching sarod, the difference between Western music and Indian music. What is the difference, sir? The system is different, that they write music, they read music. So there is a role of 3 people: Okay. composer, conductor, and performer. I mean, I salute to that system. It's amazing. I can't do that. The reading and performing at the same time is difficult. We Indian musicians, we are 3 in 1. जब हम बजा रहे हैं तो हम ही कंपोजर हैं, हम ही कंडक्टर हैं, और हम ही परफॉर्मर हैं। ये कहने के लिए तो ठीक है, लेकिन I think we have a conductor, somebody is conducting me. Some cosmic power is, I'm just transmitting. सर आपने काफी ऑर्केस्ट्रा में बजाया अभी, I have composed because I was asked to compose for orchestra, Scottish Chamber Orchestra, Scotland. They sent email that we want you to compose for our orchestra. I always admired symphony orchestras. I used to listen to Beethoven, Bach, Mozart, Tchaikovsky. And I was always, there is no drum in European music. If you listen to symphonies of great composers, मैं जब भी जर्मनी जाता हूँ तो मैं सिजदा करता हूँ, ऑस्ट्रिया जाता हूँ तो सिजदा करता हूँ. Such great musicians they produced, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस. उनकी सिम्फनी में कोई ड्रम नहीं होता था जी. होता है तो थोड़ा सा वो बजा के बंद कर देते. It's all symphony, the beautiful appealing sound of instruments, Of the combination. composition played by the instruments, violin, cello, flute, amazing. तो मैंने कैसेट में गाया, I visualized and I recorded everything from A to Z. Then I found some British conductor who could write my mind or who could read my mind, and he wrote for me. So now it's my composition. It's called Sarod Concerto.
Okay. It's called Samagam. And this composition has been played recently by London Philharmonic Orchestra, Chicago Philharmonic, so many orchestra, France also. So हम तीनों बैठते हैं, अमान अयान हम, और 50-60 म्यूजिशियन पीछे बैठते हैं. तो it's a beautiful. So you think that's a feature of our music? जैसे आपने बोला कि Indian music cannot be written in many ways. You think that then ensures कि हम अकेले ही म्यूजिक गुरु शिष्य परंपरा में म्यूजिक कर सकते हैं, जो म्यूजिक स्कूल्स रहते हैं और the way they are able to create orchestras in the rest of the world. Can we generate that with our music, with our instruments? Is it compatible? ये थोड़ा सा अहंकार है, Okay. थोड़ा एक एरोगेंस है कि हम अकेले ही गाएंगे, हम किसी के साथ नहीं गाते या हम किसी के साथ नहीं बजाते. और हमें एक दफ़ा जब इंदिरा गांधी का देहांत हुआ तो दूरदर्शन के डायरेक्टर मिस्टर शिव शर्मा के साहब ऑर्केस्ट्रल पीस बनाइए एज ए ट्रिब्यूट टू इंदिरा गांधी. तो मैंने कहा ठीक है. तो ऑल इंडिया रेडियो में दिल्ली में देर आर क्लासिकल म्यूजिशियंस, उसको वो हिंदी में वाद्य वृंद बोलते हैं. तो उन लोगों को ड्यूटी पर बुला लिया, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिशियंस they don't feel very happy performing under somebody. जी. और वही वजह से शायद we could never compose a orchestra in our country. ब्रिटिशर्स चले गए, लेकिन आज भी हमारी कोई नेशनल ऑर्केस्ट्रा नहीं है. इंटरनेशनल तो छोड़ दीजिए. जब भी ऑर्केस्ट्रा बनती है हमारे देश में तो बाहर से म्यूजिशियन बुलाने पड़ते हैं. तो जब हम ऑल इंडिया रेडियो में गए तो एक म्यूजिशियन जिसको बहुत बुरा लग रहा था कि ही विल हैव टू प्ले अंडर मी, वो बेचारे को आना पड़ा ड्यूटी के वजह से, लेकिन वो दीवार की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है. और बाकी सब म्यूजिशियन खड़े हुए, दे वर फीलिंग वेरी एम्बैरेस्ड कि क्या हो रहा है. मैं पहचान गया वो कौन म्यूजिशियन था. अगर हमारे पिताजी होते तो ही हैड ए वेरी फाउल टेम्पर ऑल्सो, वो उसको फ़ौरन बाहर निकालते पहले कि क्या बदतमीज़ी है. लेकिन हमें खुदा का शुक्र है काफ़ी बर्दाश्त है, सब्र है. तो हम उसके पीछे गए. मैंने कहा खान साहब सलाम वालेकुम. तो दीवार की तरफ मुंह करके ही बोला वालेकुम सलाम. फिर सबने कहा जी इसको छोड़िए. तो फिर हम पंडित राजन मिश्रा भी गा रहे थे उसमें, तो हमने वो कंपोज करा पीस. तो ये दिस इज द प्रॉब्लम. और इम्प्रोवाइजेशन, नेवर एंडिंग इम्प्रोवाइजेशन. यानी हमारे पिताजी जब कौंसिल ख़त्म करते थे, कुछ लोग आते थे, खान साहब अभी दिल नहीं भरा और बजाइए. तो वो कहते थे बेटा मैं राग की खूबसूरती दिखाने आया हूँ, राग की सर्जरी करने नहीं आया. बहुत रेयर है that someone, a musician is writing on other musicians. आप ठीक कह रहे हैं कि हिस्ट्री में आज तक एक म्यूजिशियन ने दूसरे म्यूजिशियन पे किताब नहीं लिखी, बाकी क्रिटिसिज्म तो होता ही रहता है. ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, ये कुछ ऊपर से हुक्म आया था. और ये ऐसे 12 म्यूजिशियन हैं जिनको सुन के मैं बड़ा हुआ और उनके साथ बहुत सारे फेस्टिवल में मेरे बाद भीमसेन जोशी जी गा रहे हैं, या पंडित रविशंकर बजा रहे हैं, या उस्ताद विलायत खान साहब बजा रहे हैं, पंडित किशन महाराज, पंडित सामता प्रसाद. अचानक ये लोग सब चले गए. एक बड़ा वैक्यूम हो गया, ऐसा अकेलापन सा महसूस हुआ. और 12 क्या, ये 100 भी हो सकते थे, लेकिन ये 12 ऐसे थे जिनके साथ मेरा पर्सनल एक्वेजन था. वो मेरे घर आते थे, मैं उनके घर जाता था. और साउथ की सिर्फ एक ही है, MS सुब्बलक्ष्मी, लेजेंडरी MS सुब्बलक्ष्मी. बहुत प्यार मिला उनसे, और उनकी करीब 8-10 फीचर फिल्म्स हैं. Okay. शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल लेडी. और एक फिल्म थी उनकी मीरा. तो मीरा मेरी वाइफ के इन लॉज ने देखी और उस रोल से इतने इम्प्रेस हुए कि वो जब
मेरी वाइफ पैदा हुई तो उनको शुभलक्ष्मी नाम दिया। नाम दे दिया गया। आपको कभी ऐसा हुआ है that in the stage you have forgotten that why you are there, just the music takes over? नहीं, ऐसा हुआ है, सबके साथ होता है। हमारे साथ भी हुआ है कि एक राग 2-2 घंटे, 2.5 घंटे हो गए। लेकिन जैसे जैसे आदमी का उम्र बढ़ता है, तजुर्बा होता है, तब हमें लगता है कि भाई प्रिसाइजनेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। नहीं तो हजारों साल से मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स क्यों कहते हैं लोग? हाँ। मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, प्रिसाइजनेस, कंसाइजनेस। तो इन बातों का एक बहुत डीप मीनिंग है कि हमें उतनी ही बात करना है और कब ख़त्म करना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो खान साहब, आप we were discussing about राग। जी, जब आप राग कंपोज करते हो तो आपके माइंड में कोई शब्द रहते हैं? आर यू थिंकिंग ऑफ एनी लैंग्वेज? आर यू थिंकिंग ऑफ वर्ड्स? इज इट जस्ट म्यूजिक? हाउ इज अ राग कंपोज्ड? आई वुड लव टू से मैंने बनाया है। जी। और मेरी बायोग्राफी में शायद लिखते हैं कि आई हैव कंपोज्ड 40 रागास। मैं कंपोज नहीं करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी रेडीमेड मटेरियल आता है वहीं से बन के आता है और उसको मैं गुनगुनाने लगता हूँ। डा डा रा डा 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 रा डा रा डा 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 रा डा रा डा डा रा डा 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 रा डा रा डा रा ए रा 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 डा रा डा रा डा रे ना ए रा ना डा डा रा। अब ये स्लो मोशन में है, इसको डा रा डा 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 डा। तो एक मेलोडी हम हर वक्त गाते थे, गुनगुनाते थे। तो ये मैं क्या गा रहा हूँ भाई? तब फिर हम उसको एनालाइज करते हैं कि अच्छा इसमें क्या सुर लग रहा है। ये पा पा मा गा रे सा धा नी पा रे रे मा पा धा नी सा नी ए रे रे ना पा नी धा नी सा धा नी पा मा धा मा पा मा गा मा रे गा रे सा नी सा धा नी धा पा मा पा नी धा नी सा रे पा गा मा रे पा पा मा पा धा नी धा पा मा धा मा पा मा गा मा रे गा पा मा पा धा नी पा मा पा धा नी धा पा मा धा मा पा मा गा मा रे गा सा नी रे गा मा पा मा गा रे। तो एक नया रूप, नई शक्ल आ गई सामने। अब उन दिनों पूना में गणेश फेस्टिवल में मुझे बजाना था, तो वहाँ से मैसेज आया कि साहब कुछ नई चीज़ लाइए इस दफ़ा गणेश फेस्टिवल में, दगड़ू सेठ का जो होता है। तो हमने इस मेलोडी का नाम गणेश कल्याण रख दिया जी। और पुणे में पहली बार इसको बजाया। खान साहब, when we talk about rags, जी, the description you were giving, ऐसा what was the rag which came and spoke to you that you could speak to easiest or that made the mark on you first? when I was 25 years old और my first whole night concert in Kolkata at Kala Mandir, the last राग जो मैंने वहाँ बजाया था, that was my own discovery, जिसको हमने राग सुहाग भैरव बोला। सा सा मा मा अदे दा आ रे ता रे
अरे ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि हम कौन से राग को ज़्यादा पसंद करते हैं. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि हम हर राग को समझने की कोशिश करते हैं. और अभी हमने रिसेंटली भंकार बजाया था पुणे में 5:30 बजे सुबह. 10,000 लोग बैठे हुए थे. वो दिवाली पहाट जी. होता है वहाँ. हर राग हमारे लिए माननीय है और पूजनीय है और उसको हम समझते हैं. लेकिन हमने लाइफ में शायद दरबारी बहुत बजाई, मालकौस बजाया, रागेश्वरी, बागेश्वरी, ये सब राग. 4-5 रागों में ही ज़िंदगी बीत जाती है. If you want to learn classical music, it's almost like entering into a dark tunnel with the hope of sun ray someday. एक अंधकार की गुफा में आप जाते हैं रोशनी की तलाश, और वो रोशनी शायद 2-4 लोगों को नज़र आती जाए, लेकिन जो कारवां है वो तो हज़ारों का है, एक चला जा रहा है सारा चला. तो स्ट्रगल इस फील्ड में, अब जो भी मुझसे अब सीखने आता है तो मैं अब कहता हूँ भाई मैं अभी तो खुद ही सीख रहा हूँ. अब मैं अपने आप को ऐसा लग रहा है और सीखने की मुझे ज़रूरत है, और इस फील्ड में बेटा ना ही आओ तो अच्छा है. अब ये सुनने में बुरी बात लगती है कि साहब आपने अपने बच्चों को सिखाया, आप मुझे कह रहे हैं मत. अरे भाई, मैंने अपने बच्चों को इसलिए सिखाया कि यही मेरी वेल्थ है ना. वट एवर आई हैव इनहेरिटेड आई ट्राई टू शेयर विद देम. लेकिन मैं जानता हूँ देयर वॉज ए स्ट्रगल, देयर इज़ ए स्ट्रगल एंड देयर विल बी ए स्ट्रगल. ये सब कुछ जानते हुए भी आप आना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम. खान साहब, जो आपने अभी कहा that you knew it was a long dark tunnel and that was the only inheritance you felt for your children. How was that process for you, learning with them, teaching them, allowing them to go on stage, now your grandchildren? जी. uh, उन्होंने, did they take it well, did they get frustrated, irritated? It was a big challenge for me how to make them understand or interested into music. तो उनके लिए हम ये सब उस ज़माने में या आज भी नर्सरी राइम, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और ओल्ड मैकडोनल्ड, ये सारे सरोद पे हम बजाते थे अच्छा. टू एंटरटेन देम. डा 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 डी डी डा 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 डा. एक ज़माने में हम जब स्कूल में थे तो एक इंग्लिश ट्यून कम सितंबर बहुत मशहूर हो गई थी. ऑलमोस्ट लाइक ए फिल्म सॉन्ग. ब्याह बैंड वाले शादी ब्याह में बजाते थे. डांस करते थे लोग और इतना पॉपुलर था. एंड टू एंटरटेन माय स्कूल फ्रेंड्स आई हैड टू प्ले ऑन द सरोद. ये फिल्मी गाने, चौधरी का चांद हो, तेरी प्यारी प्यारी सूरत. बट अगेन, यानी सरोद पे फिल्मी गाना बजाना, कोई भी गाना बजाना मुश्किल होता था. और यही मेरा स्ट्रगल था बचपन से, दैट आई वांटेड टू सिंग थ्रू माय इंस्ट्रूमेंट. जब अमान की तालीम शुरू हुई तो इनको, ही वॉज ए स्पोर्ट्स मैन, उनको फुटबॉल का शौक, क्रिकेट का शौक, और ऑटोमोबाइल चाइल्ड है. मतलब सोते वक्त भी वो हैंगर लेकर गाड़ी चलती रहती थी. इनफैक्ट आई टॉट हिम ड्राइविंग. मेरे पास गाड़ी ऐसी थी, ऑटोमेटिक थी. वो घर के सामने पार्क है, तो इतना पैशन गाड़ी के लिए, तो 5 साल की उम्र में ही वॉज ड्राइविंग. लेकिन बजाना शुरू करा 2 साल के बाद अयान साहब आए. अब अयान का बचपन से पेंटिंग का भी काफ़ी शौक था. गणेश भगवान पेंट होते थे हमारे घर में, आप देखिए आके कर. तो गणेश भगवान प्लेइंग ऑल काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, एक ऐसा उन्होंने स्केचेस बनाए हैं. तो वो गणेश भगवान मेरे सपने में आते हैं 5-6 साल की उम्र.
वो उनका पेंटिंग भी होता रहा, म्यूज़िक भी चलता रहा। और देन एवरी टाइम आफ्टर द परफॉर्मेंस वो हमें पूछते थे कैसा लगा या क्या खराबी हुई। तो फॉर्चुनेटली एवरी कॉन्सर्ट वाज रिकॉर्डेड। तो मैंने कहा भाई आप यू लिसन टू योर ओन रिकॉर्डिंग और आप खुद पहचानिए कहाँ क्या गड़बड़ हुई है और कहाँ ठीक करना है। और तो ग्रेजुअली स्लोली दे रियलाइज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे यही होता है कि बच्चा बच्चा या बच्ची जब अपनी जिम्मेदारी महसूस कर ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली या फैमिली प्राइड, एक वो भी एक अल्फाज है, तो एक बहुत खुशी का दिन होता है माँ बाप के लिए। कर रहे हैं और खुदा का शुक्र है उनको सोलो भी बजाते हैं। जब सोलो लोग क्योंकि इवेंचुअली अकेले जब आप स्टेज पर होते हैं तो इज़ मोर चैलेंजिंग। लोग दोनों को साथ देखना चाहते हैं, लोग हम तीनों को साथ देखना चाहते हैं, अब लोग हम पांचों को देखना चाहते हैं, सरोद क्विंटेट। क्योंकि जब पहली बार ग्रैंड चिल्ड्रन साथ में बजाए दिल्ली में तो मिस्टर धनकर वॉज चीफ गेस्ट, वाइस प्रेसिडेंट, और इट वॉज आई थिंक टाइम्स ऑफ इंडिया वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व। तो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, हम 10-15 मिनट बजाना था। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम दे फेस द ऑडियंस स्टेज। और उसके बाद मिस्टर धनकर वॉज वेरी काइंड, बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया बच्चों को। दूसरे दिन माई ग्रैंड चाइल्ड जोहान, दे आर ट्विंस, दादा अब्बा हमारा अगला प्रोग्राम कब है? मैंने कहा बेटा मुझे अपना नहीं पता, मैं आपका कैसे बताऊंगा। तो खुदा का शुक्र है कि दे एंजॉयड, उनको मज़ा आया। Khan Sahab, you said that for your friends you played some music, for your children you played nursery rhymes. Are your grandchildren asking you to play any BTS or any Taylor Swift? They introduced me to BTS and Justin Bieber also. And they are passionately involved with football also. जी. तो मिस्टर रोनाल्डो को उन्होंने इंट्रोड्यूस करा और एक मिस्टर दूसरे हैं मेसी भी। तो एक बच्चा मेसी का फैन है, एक रोनाल्डो का है। और माइकल जैक्सन को भी शुरू में इतना सुना उन्होंने। इनफैक्ट माइकल जैक्सन 1984 में आई वाज ट्रैवलिंग फॉर 2 months, आई वाज ट्रैवलिंग इन अमेरिका, और लास्ट कॉन्सर्ट मेरा LA में हुआ। एक आदमी आया मेरे पास कि सर हमारे घर माइकल जैक्सन आ रहे हैं एंड ही वांट्स टू लिसन टू यू। प्राइवेट कॉन्सर्ट था। अब मैं तो आई वांटेड टू कम बैक, बच्चे छोटे थे, ये 84 की बात है। तो मैंने कहा न्यू आई एम वेरी हैप्पी एंड ऑनर्ड, लेकिन मैं रुक नहीं सकता हूँ, आई हैव टू रीच, आई हैव टू गो बैक दिल्ली। और मुझे ऐसा लगा कभी आगे कभी मिल लेंगे, कभी कहीं, मुझे नहीं पता था इतना जल्दी माइकल जैक्सन चले जाएंगे। बट अमेजिंग आर्टिस्ट, क्या एक नया विजन, एक नया सोच, एक नई दिशा डांस में, म्यूज़िक में, और पूरी दुनिया को हिला दिया उसने, पूरी दुनिया। उनसे पहले एल्विस प्रेस्ली थे। Khan Sahab, when you perform, whose claps or whose acclaim is more important? The person who knows classical music, your peers, or the person who is hearing for the first time, who maybe has no idea what he is listening to? इसी में मेरा ज़्यादा अटेंशन रहता है फॉर दोज हु हैव कम फॉर द फर्स्ट टाइम। जी. जो आदमी पहली दफ़ा आया है वो कान नहीं पकड़ ले के मुझे आगे से आना नहीं है। वो उस श्रोता का मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र होती है और इज्जत होती है कि जो पहली बार आया है, गलती से आया है या मर्ज़ी से आया है, लेकिन खुदा करे वो दोबारा भी आए, ये हमारी कोशिश होती है। बिकॉज वी आर हम्बल रिप्रेजेंटेटिव। हमारा काम लोगों को संगीत से जोड़ने का है।
वो तोड़ने का नहीं है कि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा गाओगे बजाओगे तो वो रिवर्स हो जाता है काम पे। And Khan Sahab, आज भी before you perform, do you still feel nervousness or now it is almost second nature? नहीं, नथिंग शुड बी टेकन फॉर ग्रांटेड। आज भी माई कॉन्सर्ट आई ट्रीट एज इफ इट्स द फर्स्ट कॉन्सर्ट ऑफ माई लाइफ। उतना ही एक्साइटमेंट होता है, उतने ही फिक्र होती है, उतने ही टेंशन होता है। क्या होता है, हम लोग जिस दिन कॉन्सर्ट होता है वी आर लाइक ए पेशेंट, हम सारा दिन आराम करते हैं। सर आपको अवार्ड भी खान साहब अवार्ड्स काफी मिले इवन। नहीं, आई एम ग्रेटफुल टू माई गवर्नमेंट। सबसे पहला अवार्ड मेरा इलाहाबाद में संगीत प्रयाग संगीत समिति, जी वो आपने देखा होगा बायोग्राफी में, वो पहला अवार्ड मेरी लाइफ का था। वो सरोद सम्राट वहाँ से ही मिला था। मैं शायद 16-17 साल का था उस वक्त। बाद में सरकारी सारे आई एम सो ग्रेटफुल। आई हैड द ऑनर ऑफ मीटिंग फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद जी। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। हमारे पिताजी को 1960 में पद्म भूषण मिला था जी और वो हमारे पास गाड़ी नहीं थी, टैक्सी में गए हम, पिताजी मुझे साथ ले गए। तो फर्स्ट टाइम आई सॉ पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधा कृष्णन। और हमारे पिताजी तो बिल्कुल ही सिंपल इनोसेंट सेंटली आदमी थे, पगड़ी पहनते थे, साफा पहनते थे। तो अवार्ड सेरेमनी के बाद एक रिचुअल होता है मुगल गार्डन में, सब लोग चाय पीते हैं। तो सबसे पहले नेहरू साहब आए। खान साहब कोई तकलीफ़ तो नहीं है आपको? और मेरी तरफ देखा, खान साहब आप बच्चे से कोई गुरु मंत्र तो नहीं छुपा रहे? कहते नहीं नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ सब देने की। नेहरू साहब चले गए। अब राजेंद्र प्रसाद आते हैं, ये पंचलाइन है। तो राजेंद्र प्रसाद जी आए, खान साहब कोई तकलीफ़ तो नहीं है? अब ऐसी सिचुएशन में जो कलाकार किराए के घर में रहता है वो कहता है सरकारी घर दे दो, जिसके पास गाड़ी नहीं है वो कहता है गाड़ी दे दो। अब हमारे पिताजी उनको कह रहे हैं कि राग दरबारी की प्योरिटी को बचाइए। आई वॉज फीलिंग एम्बेरस्ड कि ये क्या कह रहे हैं। कि खान साहब मैं समझा नहीं। कहते हैं मियाँ तानसेन ने इस राग को बनाया था, आप प्रेसिडेंट हो, ये आपकी ड्यूटी है कि इस राग की प्योरिटी बनी रहे। He was hoping as if next day he will pass a resolution in the parliament कि भाई दरबारी राग ऐसी गाना। तो इतने सिंपल लोग थे, इतने वन ट्रैक माइंड। He was committed to the purity of music, he was dedicated। और उनको प्रोटोकॉल का भी नहीं पता था that you can't leave before the president। पिताजी ने कहा मैं इजाज़त चाहता हूँ, मेरी नमाज का वक्त हो गया है। वो चल पड़े वहाँ से और मैं उनके पीछे पीछे, और कोई सिक्योरिटी वाले ने रोका भी नहीं उनको। वो घर आए और हमारी माता जी से पद्म भूषण की बात नहीं कर रहे अपनी, कह रहे राजेंद्र बाबू ने वायदा करा है कि दरबारी की प्योरिटी बनी रहेगी। ऐसे लोग, सच पीपल केम टू दिस प्लेनेट। और कैसे कोई प्लानिंग नहीं लाइफ की। जी जैसे आज हर समझदार इंसान प्लानिंग करता है, 5 साल में ये होगा, 10 साल में ये होगा, पर कोई प्लानिंग नहीं। लेकिन कल पे भरोसा है भगवान के ऊपर, कल ठीक ही होगा, लेकिन कल की कोई प्लानिंग नहीं। Khan Sahab, I had read somewhere that you had the opportunity to meet Princess Diana as well. यस यस। Was she appreciative and understanding of the music of your art form? आई एम श्योर शी liked and enjoyed music, not only my music but music in general, because she became like a prophet to the whole world, the kind of attention she received and the love of people. I had the honor of meeting many prime ministers of our country, many presidents, but I will always remember Mr. Narasimha Rao, Prime Minister.
He was the Prime Minister when Diana, Princess Diana came and Prince Charles, now King Charles. And there were so many functions, so many celebrations in Mumbai, Delhi, everywhere. Then one invitation we received, very private dinner, only for 20 people at Prime Minister's house. And Diana was sitting in front of me. That was the greatest honor Mr. Narasimha Rao gave. Generally, in government dinners, musicians are given seated somewhere far away from the chief guest. So it was very cold evening, and everybody was looking here and there. I said, "What happened?" The prince is feeling cold, so we are looking for some shawl. So it was a very, very antique shawl. I was carrying that, 500 years old. So I then got up and gave my shawl, and she said, "Thank you." Khan Sahab, आगे as you look forward, anything you are looking forward to, which you are enjoying now, new rag, new music, playing with your नहीं, grandchildren? बहुत सारे कोलैबोरेशन है जो वॉल्श के साथ हमने जी। करा. वो प्रेयर्स एक एल्बम निकला था, and he is so committed and dedicated, brilliant musician. And I had the honor of meeting Ringo Starr जी, in his house also. Amazing drum, क्या ड्रम का उनका सोच विचार था. Sharon has been the guitarist, yes. उनके साथ भी काफ़ी हुआ है. और अभी there are so many things we have to collaborate and we have to record. और हमारा जो वाइफ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हम सबकी लाइफ में, क्योंकि शी वॉज ए भारतनाट्यम डांसर, डिसाइपल ऑफ रुक्मणी अरुणडेल. और हमारा एक पुलिस कमिश्नर थे बेंगलोर में, मिस्टर निज़ामुद्दीन, जो मुझे साईं बाबा के पास ले गए थे, पुट्टपार्थी के साईं बाबा. एंड दैट वाज द आई वाज इन ए वेरी डिस्टर्ब फ्रेम ऑफ माय माइंड. 70s की बात है. एंड आई वांटेड टू सेटल डाउन. काफ़ी टाइम निकल गया और आई वांटेड टू हैव ए फैमिली. तो आई हैड सीन हर डांस कलकत्ते में एक फेस्टिवल में, और डांस करते वक्त ऐसा लगा वाइल वॉचिंग हर डांस एज इफ गॉड हैड सेंट हर फॉर मी. तो वो आई मेट द फैमिली मेम्बर्स एंड ऑल दैट. वो एक फीलिंग पैदा हुई, बट आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि क्या होगा क्या नहीं होगा. तब जब साईं बाबा से जब मीटिंग हुई तो साईं बाबा ने कहा वो असामी लड़की बहुत अच्छी है. जो भी wars है, जो भी नफरत है, म्यूजिक has that ability that for that 2 hours, बस वही कोशिश कर रहे हैं. जो भी वो ऑडिटोरियम में है, हाँ बिल्कुल. they forget. That's For that right. 45 minutes, जितना ही नेगेटिव हो रहा है उतना ही पॉजिटिव. आप कॉन्सर्ट्स देखो, people want to go to concerts, बिल्कुल. people want to attend, and इतने ही लोग हैं जो अप्रिशिएट करते हैं. नहीं नहीं, सबसे बड़ी बात यही है कि पीस लविंग पीपल ज़्यादा हैं हमारी There दुनिया are में. more, and they want the music, they want to listen, बिल्कुल. they enjoy it. बिल्कुल. Sir, on that positive note, sir, Khan Sahab, I would just like to say thank you so much.